हेलो वेलकम टू द चैनल माय नेम इज सैम एडम थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आपको पता है जब आप स्पीकिंग एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको स्पीकिंग पार्ट 2 में जो क्यू कार्ड मिलता है उसमें पता है कितना टाइम होता है आपके पास रेडी होने के लिए 1 मिनट। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जो वो गलती ये करते हैं कि 1 मिनट में वो बहुत, क्योंकि आपको वो एक A4 लेमिनेटेड पेपर दिया जाएगा, उस पर क्यू कार्ड क्वेश्चन होगा जो आपने बोलना है जिस पे 2 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही आपको एक ब्लैंक पेपर और एक पेन दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। अरे 1 मिनट में क्या लिखेंगे आप, मुझे ये बताएं कि 1 मिनट आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे 1 मिनट में। ये गलती करते हैं तो तब जाके उनके बैंड्स कम आते हैं, वो स्पीच सही कर नहीं पाते, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये आप जो क्यू कार्ड देख रहे हैं, आज इस क्यू कार्ड की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जो वीडियो प्ले करने लगा हूँ आपको, उसको सुनिएगा गौर से और अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कैसे इसको, इस क्यू कार्ड को, इसका आंसर कैसे देना है। तो आप आंसर सुनिए और उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा कि अगर आपके पास एक ऐसा आंसर आता है तो आपने लिखे बगैर, मकसद है 1-2 पॉइंट वर्ड जो है ना नोट करने हैं, लेकिन कोई स्टोरी नहीं लिखनी। आपने माइंड को प्रिपेयर करना है और 1 मिनट में तैयारी करनी है कि मैं अपना क्यू कार्ड कैसे जो है ना वो अपनी स्पीच जो है वो कैसे कर सकूं। 1 मिनट के अंदर तैयारी करनी है, उसका बाद आपने शुरू कर देना, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्यू कार्ड का क्या को देखते हैं। आप ये देख लें, क्यू कार्ड स्क्रीन पे है, रीड करें इसको और सोचें कि 1 मिनट में क्या आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपना टाइमर लगाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ये याद रखना। प्रैक्टिस में टाइमर लगाएं कि 1 मिनट में मैं इस पे कितनी तैयारी कर सकता हूँ, ये चीज़ करें। उसके बाद हम जाके अभी आंसर सुनते हैं। आंसर सुन के उसके बाद मैं आपको टिप देता हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है, किन चीज़ों को माइंड में रखना है और उसी वक्त आपने ऐसे तैयारी करनी है कि आपका जो क्यू कार्ड अच्छा होगा और आपके बैंड अच्छे आएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो सुनते हैं। IELTS Speaking Part 2. Cue Card 2. In IELTS Speaking Part 2, when an examiner gives you a cue card question, you will have just 1 minute to prepare your answer, and then he or she will ask you to start your 2-minute speech. Okay, let's read the cue card question on the screen. Describe a shop near where you live that you sometimes go to. You should say where it is located, what items does it sell, how often you go there, and explain why you go there. Here is a model answer. As a graduate-level student residing in Chhattisgarh with my family, I find great pleasure in shopping, particularly due to the convenience of having D-Mart located adjacent to my residence. D-Mart serves as a comprehensive superstore, offering a diverse range of essential items all under one roof, making shopping an enjoyable experience. Situated opposite my apartment, D-Mart enjoys a prime location at the entrance of the road leading to the main street of Raipur, Chhattisgarh. Its accessibility from anywhere in town, coupled with its proximity to my home, makes it a convenient destination for daily necessities. The store caters to various categories, including groceries, fresh produce, dairy products, frozen goods, fruits, toys, household items, apparel, footwear, and electronic gadgets, ensuring that customers find everything they need for a decent lifestyle. One of the notable aspects of D-Mart is its reasonable pricing, making quality products accessible to everyone in the community. As a result, I find myself visiting the store at least once a day, often stepping in to procure items that my family may have overlooked, or to indulge in some light snacking during breaks from college. While D-Mart has significantly reduced the effort required for shopping, there are occasions, particularly during holidays or when specific needs arise, when multiple visits are necessary. In such instances, I am frequently tasked by my mother to fetch necessary items, especially when we have guests at home. Additionally, my visits to D-Mart provide opportunities for social interaction and community engagement, as I often encounter familiar faces and build relationships with fellow shoppers and store staff. These interactions not only enhance the shopping experience, but also contribute to a sense of belonging within the community. In essence,
DMart serves as more than just a convenient shopping destination. It plays a vital role in meeting our daily needs, fostering social connections, and enriching our overall quality of life. As a result, I find myself regularly visiting the store for various reasons, each time reaffirming its significance in my daily routine. This is the end of model answer. एक टिप ये है, वो ये है कि ये क्यू कार्ड सुनने में, ऐसे क्यू कार्ड अगर आप सुनते भी हो, साथ में आपको तैयारी भी करते हो, तो आपकी लिसनिंग भी अच्छी होगी. आप ऐसे क्यू कार्ड सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और साथ प्रैक्टिस करो, बोलो, तो आपकी लिसनिंग जो आइस लिसनिंग है वो स्किल भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी. ठीक है. और उसके बाद आपको मैं ये क्यू कार्ड दे रहा हूँ, तो ये टिप्स बता रहा हूँ कि कैसे आपने करना है. ये करके तैयारी करें तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिखना कुछ नहीं है. आपके पास पेन होगा, पेपर होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड लिखने हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन आए 4 लिख लें, 5 लिख लें, दैट्स इट. उसके ज़्यादा ना लिखें. तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे आप? लोकेशन. ठीक है. इसका क्वेश्चन है, आप माइंड में रखें कि ओके लोकेशन, एल पर डाल दो, एल ओ को डाल दो, LOCA डाल दो. कुछ भी पूरा लोकेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? कि टाइम नहीं है आपके पास, 1 मिनट है. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि ये एल भी लिखा हो, आपको पता हो कि ये लोकेशन है. ठीक है. उसके बाद आइटम्स सोल्ड, ये लिख दो, आइटम्स सोल्ड, या आई आगे स्लैश करके एस डाल दो, आइटम सोल्ड. आपको पता होना चाहिए कि ये है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स, ये आपने चौथा लिखना है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ कितनी दफ़ा जाते हो, हाउ ऑफन यू गो देयर, हाउ ऑफन यू गो टू दिस शॉप, ये पूछ रहे हैं आपसे. ठीक है. ये तीसरी चीज़ लिखनी है. और चौथा जो है वो लिखना है आपने कि रीज़न क्या है जाने का. देखो ना, मैं ऑफन इस शॉप पे जाता हूँ, तो क्या रीज़न है मेरा जाने का. ठीक है. तो इसको जब आप बोलेंगे 4 चीज़ों को आपने माइंड में रखना. उस पेपर पे आपने 4 चीज़ें लिख देनी है. चाहे फुल इसके स्पेलिंग भी ना लिखो ना, तो इश्यू नहीं है. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से वर्ड्स नोट डाउन किए हैं ताकि मैंने इन पे स्पीच करनी है. तो आपको पता होना चाहिए कि मैं लोकेशन को बताऊंगा मेरे घर से, तो लोकेशन पे आप इलेबोरेट करें थोड़ा सा. मेरे घर से दूर है, कितनी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, या मेरे घर से वो शॉर्ट ड्राइव है, मैं कैसे जाता हूँ वहाँ पे. थोड़ा सा इलेबोरेट करें. नंबर 2 पे आ जाएं तो आप आइटम सोल्ड, कौन सी आइटम्स हैं. मसलन ग्रोसरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, कोई वैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ है वहाँ पे, बेकरी है, केक्स हैं, कुछ हैं. तो आपको थोड़ा सा एलेबरेट करें कि क्या क्या चीज़ें वो बेचते हैं. तो आपने उसको शॉर्ट नहीं बोलना कि ये एक चीज़ है, दे सेल केक्स, एंड उसके बाद आप मूव हो गए ना. आपने थोड़ा सा एलेबरेट करो, चीज़ें गिने, बहुत सारी दुकानों में कितनी चीज़ें होती हैं. ठीक है. और उसके बाद आपने करना है कि मैं कितनी, हाउ ऑफन आई विजिट दैट शॉप, मैं कितनी दफ़ा जाता हूँ वहाँ पे. मकसद है हफ्ते में 1 दफ़ा जाता हूँ, 2 हफ्ते में 1 दफ़ा जाता हूँ, या रोज़ जाता हूँ, एवरी डे, सिंगल डे. आई गो देयर ट्वाइस अ डे और 3 टाइम्स अ डे. 3 दफ़ा मैं जाता हूँ. ठीक है. उस दुकान पे दिन को. और यू कैन से वंस अ डे. यू कैन जैसे भी आप जाते हो, ओकेजनली जाते हो वहाँ पे, जितने मतलब ऑफन जाते हो उसको डिस्क्राइब करो, थोड़ा एलेबरेट करो उसको. ठीक हो गया. और उसके बाद रीज़न मैं क्यों जाता हूँ. ऑनर अच्छा है, कि हमारे लोकल हैं, तो लोकल कम्युनिटी का बंदा है, हम सपोर्ट करते हैं उसके बिज़नेस को, या उस भी जो प्रोडक्ट हैं वो गुड क्वालिटी के हैं, और प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल, रीजनेबल प्राइसेस, उसके लिए जाते हैं. वो बंदा कहता है कि ऑल्दो आई डोंट लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स दे, मुझे नहीं उसका प्रोडक्ट्स का इतना नहीं अच्छा, लेकिन the shop is too expensive, but I only go there because the commercial area from my place where I live is quite far away. It takes me like 10 minutes to get there. 10 मिनट लग जाते हैं मुझे जाने के लिए, या 15 minutes drive from my house. So it's quite far, so I have to go there. It's a local shop, so I have to go there. But it's quite expensive. ऐसा भी है कि expensive है, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जाता हूँ क्योंकि 15-20 मिनट की ड्राइव करूँगा, इससे बेहतर है मैं यही इधर से चीज़ ले लूँ. ये भी हो सकता है. यहाँ ये हो सकता है अगर आप पॉजिटिवली कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करता हूँ इस बिज़नेस को, कम्युनिटी का बंदा है, हम सपोर्ट करते हैं, बंदा अच्छा है, प्राइसेस अफोर्डेबल हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि प्राइसेस अफोर्डेबल हैं, रीज़नेबल प्राइसेस हैं, माल उसका जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी के हैं,
تو ایسی چیزیں آپ الیبوریٹ کریں گے یہ 4 چیزیں تو آپ کا جو ہے نا کیو کارڈ بڑے آرام سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکیں گے, 2 منٹ کی اسپیچ کر سکیں گے, 1.5 منٹ to 2 منٹس آپ ایزی کر سکیں گے, اور آپ کے بینڈز بھی اچھے آئیں گے, فلو ہونا چاہیے. ایسے سوچو جیسے آپ کا کوئی دوست سامنے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ سے آپ اس کو بتا رہے ہو ریلیکس موڈ میں, جتنا ریلیکس ہوں گے, جتنے کنورسیشنل موڈ ہوگا, اس کے جو ٹون ہوگی وہ بھی ایزی ہو بولنے میں, جتنا آپ ایزی بولیں گے, ریلیکس ہو کے بولیں گے, اچھا بولیں گے, فلو اتنا آئے گا اس میں, فلو جتنا ہوگا اتنے آپ کے بینڈ اچھے ملیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو آج کی ویڈیو اتنا ہی ہے. یہ چیزیں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے ملا آپ کو کارڈ, آپ 2-4-5 چیزیں نوٹ کر لیں, ورڈز بس 4-5 ورڈز نوٹ کر لیں, اور اس کے بعد آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے لمبا چوڑا کرنے کی, آپ کے مائنڈ میں پتہ ہونا چاہیے. اگر یہی بات اگر ہو کہ گیم کون سی پلے کرتے ہو اس پہ کیو کارڈ ہوتا ہے, تو آپ بولتے ہو ہاں میں کرکٹ کھیلتا ہوں یا میں فٹ بال کھیلتا ہوں, تو آپ بول دو کہ میں کہاں کھیلتا ہوں, کس کے ساتھ کھیلتا ہوں, اکیلا کھیلتا ہوں, لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہوں, کتنی دور جاتا ہوں, کب جاتا ہوں, کب پلے کرتا ہوں, کتنا پلے کرتا ہوں, کیوں پلے کرتا ہوں. تو یہی چیزیں مائنڈ میں آ جائیں گی آپ, تو آپ لکھ کے تو اس کو پریزنٹ کر دو. مطلب لکھنے 4-5 ورڈز لکھنے ہیں جو مین ورڈز ہوتے ہیں, جیسے اس میں لکھا لوکیشن, آئٹم سولڈ, وزٹس اور ریزن, یہ چیزیں لکھ کے بس. اور زیادہ لمبا چوڑا داستان نہیں لکھنی, داستان لکھو گے تو آپ کو سب کچھ بھول جائے گا, ٹرسٹ میں. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا, اس نے بول دینا کہ یس یو میں اسٹارٹ ناؤ, تو وہ یہ بولے گا تو آپ کیا بولیں گے, آپ کیا کریں گے, آپ بولیں گے کہ آپ کے مائنڈ سے کچھ آدھی چیزیں باہر رہ جائیں گی. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ نے زیادہ نہیں لکھنا, آپ نے 4-5 ورڈز لکھنے ہیں جو پوری جو مین ورڈ اس میں جس پہ ٹاپک پہ بات کرنی ہے آپ نے, تو اس پہ الیبوریٹ کریں, بولیں, اور دس سے آپ کا کیورڈ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ سبسکرائب کریں چینل کو, اور دوسرے لوگوں کو بھی بولیں سبسکرائب کریں, لسن کریں, اور ایک